Right on. Question number 6. लिखो limit x is tending towards 1. ठीक है, 1 plus cos pi x upon 1 minus x the whole square. This is to be evaluated. Please note down the question. Limit x is tending towards 1, 1 plus cos pi x upon 1 minus x the whole square. Okay. Now this problem is again 0 by 0 form. X का value आप 1 डालोगे तो ये problem भी 0 by 0 form देगा हमें. Okay. Now can anyone tell me what substitution will come? तो बता सकता है क्या substitution आएगा? 1 plus h. Absolutely correct. Very good. तो लिखो let x is equal to 1 plus h. Reason we know what is to be written as x is tending towards 1. Therefore h tends towards 0. ये conversion है अपना. X tending towards 1 है तो h tending towards 0 में convert हो जाएगा. Now as we have done in the previous 5 problems, पूरा problem h में convert होना चाहिए along with limit. तो लिखो next step. Therefore L is equal to limit h is tending towards 0. Instead of x tending towards 1, we'll be having h tending towards 0. 1 plus cos of pi remaining same, x के जगह पे 1 plus h आएगा upon 1 minus x के जगह पे 1 plus h आएगा. ठीक है, and the whole square remains. Close the square bracket. जहां पे भी x है 1 plus h डाल दिया and h tending towards 0 में convert हो गया. The whole problem gets converted in form of h. So nothing should be left out in form of x. X में कुछ नहीं होना चाहिए. Okay, now see what is going to happen. As we all know, this pi gets multiplied to both of them. ये pi multiply हो जाएगा और ये माइनस साइन से ओपन होके सिंप्लीफाई हो जाएगा. अभी हम थोड़ा डायरेक्टली करते हैं. ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट h is tending towards 0. This will become 1 plus cos of pi plus pi h upon this is going to become h square. या ऐसा लिखो, this is going to become minus h the whole square for your reference. ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर बचेगा. नो डाउट डायरेक्ट आप h स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि माइनस h का होल स्क्वायर लिखना है. नाउ रिकलेक्ट अलाइड एंगल फॉर्मूला. तो कैन एनीवन टेल मी cos ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स व्हाट? Minus cos theta. परफेक्ट, वेरी गुड. इट इज माइनस cos थीटा. तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो लिखो व्हाट विल दिस बिकम. लिमिट h is tending towards 0. This is going to become 1 minus cos pi h. ठीक है, 1 minus cos pi h upon h square हो जाएगा. Reason you can write down for your reference, since cos of pi plus theta is equal to minus cos theta. Okay. Okay, now recollect in type 6b. तो 6b में हमने ये प्रॉब्लम किया था. इफ यू रिकलेक्ट, डू नॉट राइट डाउन, खाली आप ये देखो 1 माइनस कॉस mx बाय x स्क्वायर वाला प्रॉब्लम किया था हमने, वेयर इट वाज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. वी हैव डन दिस प्रॉब्लम. तो इसमें दो मेथड हमने यूज किए थे, एक कॉन्जुगेट मेथड था और दूसरा फॉर्मूला मेथड था. इन दिस एग्जांपल इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर आपको आएगा m स्क्वायर बाई 2. इफ यू हैव द नोटबुक ऑब्वियसली अलोंग विथ यू. तो इसका आंसर देखो, हमें m स्क्वायर बाई 2 आया था.
तो इसको हमने दो मेथड से किया था, आइदर बाय कॉन्जुगेट मेथड और वी हैव डन इट बाय फॉर्मूला मेथड। तो ये देखो ये वाला सिचुएशन यहाँ पे है, सिर्फ x के जगह पे h है, rest everything is same what we are having. So when we are solving this problem, either we use conjugate method or let us use formula method, either of the way. Now let us do it by formula method. 1 minus cos pi h को हम formula method से करते हैं। एग्जाम में जब आप करोगे यू हैव अ फ्री हैंड, आपको लगता है कॉन्जुगेट से करना है कॉन्जुगेट से करो, फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से करो, जैसे ठीक लगता है आपको वैसा करना है, बट लेट अस डू इट टुगेदर and let us do it by formula method right now. Okay, formula method is always preferred if you see. Okay, chalo, so let's move ahead. So this is further equal to, देखो, limit h is tending towards 0, 1 minus cos pi h. Now according to the formula, can anyone tell me 1 minus cos pi h will become what? Should be written as what? Any idea? 2 sin square pi h by 2. Very good, perfect answer. 2 sin square pi h by 2 हो जाएगा, वेरी गुड, परफेक्ट है ना। आप देखो फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो 1 माइनस कॉस पाई एच 2 साइन स्क्वायर पाई एच बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस इज अपॉन में हमारे पास एच स्क्वायर पहले से ही है। फॉर्मूला में जल्दी सॉल्व हो जाता है, कॉन्जुगेट में पहले कॉन्जुगेट लोगे, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी अप्लाई करोगे एंड ऑल दैट, यू नो, सो दैट टेक्स टाइम, तो फॉर्मूला इज ऑलवेज प्रिफर्ड, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। नाउ टू थिंग्स विल हैपन स्टूडेंट्स, एक तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, और इसको हम होल स्क्वायर करके लिखेंगे। अब ये डायरेक्ट 1 नहीं होगा, ऊपर एंगल अलग है नीचे अलग है, तो होल स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा अपने को इसको। तो चलो राइट, नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 2, लिमिट के बाहर आ गया। नाउ लेट्स रीअरेंज दिस, ऐसा लिखते हैं कि अपना टाइम बच जाए। तो दिस इज साइन पाई एच बाई 2 अपॉन एच। अब थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा ब्रैकेट बढ़ा देखो, जगह छोड़ दो और होल स्क्वायर लिखो, विल मेक द एडजस्टमेंट हियर ओनली। आई रिपीट, 2 लिमिट के बाहर आ गया, दिस इज साइन पाई एच बाई 2 अपॉन एच द होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द रिजल्ट साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। अभी देखो स्क्वायर के अंदर एंगल को सेम करना है, तो पाई एच बाई 2 है एंगल, इधर एच ऑलरेडी है, तो विल डिवाइड बाय पाई बाई 2 एंड विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2। पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट डाउन इन द सेम स्टेप यू कैन डू, और एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट लिमिट एंड दिस होल थिंग इज गोइंग टू बिकम 1। तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 2 इनटू ये 1 हो गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन थीटा बाय थीटा इज 1 इनटू पाई बाय 2 द होल स्क्वायर, whole square is going to remain, 2 into 1 into pi by 2 is going to remain, pi by 2 the whole square हो गया। So obviously this is nothing but equal to 2 into pi by 4, so pi square by 4, not pi by 4, pi square by 4 हो जाएगा। So your final answer is pi square by 2, problem is over, that's it, pi square by 2 is the answer, that completes the problem। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो लिमिट इवैल्यूएट करना है उसका जो आंसर है दैट्स पाई स्क्वायर बाय 2। इन एग्जाम दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू कैरी 3 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज प्रेजेंट इन टेक्स्ट बुक और नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, बट स्टिल वी आर डूइंग देम बिकॉज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके, प्लीज नोट डाउन, एनी डाउट you can ask. Right on, next question, question number 7. Right on, L is equal to limit
x is tending towards pi by 3. देखो √3 minus tan x upon pi minus 3x is to be evaluated. Huh? Note down the question. Very important. This is again. This question in exam will carry 3 to 4 marks. Minimum 3, maximum 4. ये वेटेज है इसका. चलो अभी आप फटाफट स्टेप बताते जाओ क्या आएगा. व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूशन? प्लस एच. एग्जैक्टली करेक्ट. लिखो लेट x is equal to pi by 3 plus h. Okay, now someone else tell me the reason. जो हम चेंज करते हैं लिमिट, उसका रीजन बताओ क्या लिखेंगे. As x tends to pi by 3, therefore h tends to 0. Very good, perfect. तो लिखो as x tends to pi by 3, therefore h tends to 0. बराबर है, perfect है. So Rigveda said this substitution, Keshav said this, I think so, the change of limit. Okay, now can anyone else tell me what should be done? Next step क्या करेंगे हम अभी क्वेश्चन में? x की वैल्यू पुट करेंगे. Very good, absolutely perfect. x की वैल्यू पुट करेंगे. तो चलो let's do that. Therefore L is equal to, लिखो limit h tending towards 0 √3 minus tan x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो x के जगह पे pi by 3 प्लस h आएगा अपॉन में pi minus 3 x के जगह पे pi by 3 प्लस h आएगा एंड द ब्रैकेट क्लोजेस. देखो सब कुछ h में कन्वर्ट हो गया. नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट इन टर्म्स ऑफ x. x में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, लिमिट में भी नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं, आई मीन टू से फंक्शन में भी नहीं. ओके, नाउ कैन समवन टेल मी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी डन आफ्टर दिस? Tan of a plus b formula. Perfect, very good. Since I want this to be interactive, I am asking you, use tan of a plus b का formula. tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करो आप, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट भी ओपन कर दो. ओके, चलो प्लीज डू दैट. So this is further equal to limit h is tending towards 0, √3 remaining same, tan, so tan of a plus b का फॉर्मूला tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. ये फॉर्मूला है. Now tell me what will be left out in the denominator. Denominator में सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा वो आप मुझे बताओ. Minus h. No, that's not correct. minus 3h. Yes, minus 3h. ठीक है, अभी माइनस एच आने का एक ही रीजन है. देखो जिसको माइनस एच आया ना, देखो आपने ब्रैकेट नहीं डाला है यहाँ पे, आपने ब्रैकेट नहीं डाला इसलिए यहाँ पे माइनस एच बच रहा है. ठीक है, अगर ब्रैकेट डाल के भी माइनस एच बच रहा है मतलब ब्रैकेट ओपन बराबर नहीं किया है. ये दो ही ऑप्शन है. इट शुड बी minus 3h which is correct. Okay, now in the next step we put up the value of tan pi by 3. So quickly tell me value of tan pi by 3. √3. Yes, perfect, √3. तो चलो डालते हैं. नेक्स्ट स्टेप लिखो, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट h is tending towards 0. ठीक है, ये √3 ऑलरेडी है, माइनस ये हो जाएगा √3 प्लस tan h अपॉन दिस इज 1 माइनस √3 into tan h.
whole upon in the denominator this is minus 3h. Close the bracket. Check the set. Okay. सब्स्टिट्यूशन किया, tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan pi by 3 का वैल्यू डाला. Now we take LCM. ये देखो this minus this ना, तो इसका LCM लेना है. मतलब ये कैसा है? LCM आप लो, मैं आपको बता देता हूँ. Like this is a minus b plus c upon something like 1 minus bc ऐसा है. इसको b ले लिया, इसको c ले लिया, 1 minus bc ले लिया. अब इसका LCM इसके साथ लेना है, तो you know how to take LCM, this into this and all that, अब इसको भी b लिया ना, तो इसको भी b ले लेते हैं. √3 को b लिया मैंने, तो इसको b ले लेते हैं. You have to take the LCM of them. 1 minus b plus c upon 1 minus bc, इसका LCM लेना है. मतलब इसका LCM इसके साथ लेना है. तो चलो प्लीज डू दैट LCM वाला पार्ट. This is just for explanation. This into this minus this and all that, So chalo, do it. So this will be further equal to limit h is tending towards 0. √3 दोनों को मल्टीप्लाई होगा. √3 into 1 is √3 minus √3 into √3 tan h is 3 tan h. Now let us not waste time in writing down the steps. √3 into the denominator, LCM कैसे लेना है आपको मालूम है, माइनस √3. अब ये माइनस साइन दोनों को जाएगा, तो दिस विल बी माइनस √3 माइनस tan h. अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 1 माइनस √3 tan h, और इसके अपॉन में है माइनस 3h is already present and close the bracket. Check, this is LCM. Now this kind of, obviously trigonometry का हमने LCM नहीं लिया हुआ है, but you have taken LCM earlier. This into this, ये देखो वापस बताता हूँ. √3 into 1 is √3 minus √3 into 3 is 3 tan h. ये -3 माइनस साइन दोनों को जाएगा, तो माइनस √3 माइनस tan h अपॉन 1 माइनस √3 tan h, और अपॉन में माइनस 3h ऑलरेडी है. So I hope everyone must have got the LCM वाला step. Please note down. Okay, now let's carry out the cancellation in the numerator. Now see, two things will happen. ये जो 1 minus √3 tan h है ना, वो नीचे आ जाएगा. Why? We know that a upon b upon c is nothing but a upon bc होता है ना. a upon b upon c is nothing but a upon bc. तो वैसा यहाँ पे होगा. So right, next step after this equals, ऐसा लिखो, limit h is tending towards 0. पहले अपॉन नीचे वाला लिख लेते हैं. अपॉन, what do we have? minus 3h into 1 minus √3 tan h. Check this. ये हो गया. अभी ऊपर a मीन्स ये प्लस √3 माइनस √3 गया, -3 tan h minus tan h is nothing but -4 tan h हो जाएगा. So check this. I hope you got this, everyone. Understood? Yes, sir. Okay. Now see what is going to happen next. इसके बाद थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ. ओके, 1 मिनट. तो देखो ये सब कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं सिंपल वाले, विच वी हैव डन इन लोअर स्टैंडर्ड्स. खाली इतना ही डिफरेंस है कि ये सब ट्रिग्नोमेट्री में है. ठीक है. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. 4/3 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर निकालो उसको. 4/3 बाहर. लिमिट h is tending towards 0. Now let's rearrange this bracket. माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3 बाहर चला गया. तो अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा? tan h by h
into 1 minus, sorry, 1 upon, not 1 minus, 1 upon 1 minus root 3 tan h. ये हम इसको अलग कर दिया. We have separated them out. Okay. Now can anyone tell me what should be done next? tan h by h is equal to 0. Yes, tan h by h is going to become 1. Okay, barabar, correct. So this 4 by 3 remains. 4 by 3 remains. Tan h by h is going to become 1. Why? Recollect result. Limit theta tending towards 0. Tan theta by theta 1 होता है. Okay. Now tell me what about this? ये 1 upon वाले term का क्या करेंगे? Putting value of h. Exactly. Putting value of h. Why? Because why we are putting value of h? Because denominator 0 नहीं हो रहा है. ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा tan 0. tan 0 का वैल्यू होता है 0. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली फर्स्ट एंड सी इट ओवर हियर. tan 0 हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0. रूट 3 इंटू 0 इज 0. 1 माइनस 0 इज 1, है ना. तो ये 1 हो गया. ये डिनोमिनेटर अपना 1 हो गया डायरेक्टली. अभी कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है. रूट 3 इंटू 0 एंड ऑल दैट, अंडरस्टूड है वो. तो ये tan h by h 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो फाइनल आंसर इज 4 by 3. That completes the example. So the value of the limit to be evaluated is 4 by 3. Okay, problem is over. Now we have to take maximum care. थोड़ा सा भी अपना गलती हो गया ना फॉर्मूला अप्लाई करने में, एलसीएम लेने में, तो तुरंत आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, so we need to take all care कि फॉर्मूला बराबर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, एलसीएम बराबर ले रहे हैं कि नहीं, साइंस लिख रहे हैं कि नहीं. साइंस ऑल्सो यू शुड बी केयरफुल, यू नो. नंबर्स लिख रहे हैं कि नहीं, ऑल केयर वी हैव टू टेक. ओके, जस्ट चेक. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, इफ एनी कंफ्यूजन और डाउट. ओके, साइली, साक्षी, सर्वेश, शुभम, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. आर्यन, अबरार, केशव, आकाश, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. वैभवी, स्नेहा, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Okay, fine. So let's move on to the next question. Question number 8. L is equal to limit x is tending towards pi. Okay, root of 5 plus cos x minus 2 upon pi minus x the whole square, close the bracket. Okay, now this is a textual example. Exercise number 6.5. ये जो क्वेश्चन है that is from exercise 7.5, not 6.5, exercise 7.5 रोमन क्वेश्चन 1 का ये थर्ड प्रॉब्लम है. टेक्सचुअल एग्जांपल है. अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नॉन टेक्सचुअल, बट एज आई सेड डजंट मैटर टेक्सचुअल है कि नॉन टेक्सचुअल है. डूइंग द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. बोर्ड एग्जाम में जरूर नहीं कि टेक्स्ट बुक में से ही आएगा. चलो, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग स्टेप वाइज प्रोसीजर. So let x is equal to pi plus h, substitution आएगा. Okay, now then the reason, as x tends to pi, therefore h tends to 0. Now convert everything in form of h quickly. तो L is equal to, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट
h is tending towards 0 under the root 5 plus cos of 5 plus h root यहाँ तक है -2 होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना. लेट अस राइट डाउन डायरेक्टली. अभी तक हमने बहुत बार ऐसे लिख के किया. नाउ सी पाई माइनस एक्स, एक्स इज पाई प्लस एच, तो एक्स इधर आएगा तो एच इधर जाएगा, तो पाई माइनस एक्स विल बी माइनस एच. थोड़ा डायरेक्ट भी लिखने का आदत डालो ऑलवेज. हैव कीप दैट हैबिट, इट्स बेटर. पाई माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया तो एच इधर जाएगा. डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज अलाउड. आपके मार्क्स कट नहीं होंगे उसके लिए, दिस इज अलाउड. Okay, now I want some of the girl to answer. Cos of pi plus h. Cos of pi plus h will become what? Yes. Cos of pi plus h. Girl students, can you answer? Will become what? Someone? Okay. Anyone else can answer? Someone else? Minus Yes. cos. minus cos h. Absolutely correct. Minus Because cos this is h. equal to, yes, correct. Minus cos h हो जाएगा. तो लिखो limit h is tending towards 0. रूट में दिस विल बिकम 5 माइनस cos h. ठीक है, -2 ऑलरेडी है, एंड अपॉन में इट इज h स्क्वायर. ओके, एवरी वन ऑफ यू, आई टेलिंग यू, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज एंड द पार्ट ऑफ इट. ना, रिवाइज करते रहो. नॉट ओनली इन 11th 12 में भी लगेगा. चलो, नाउ टेल मी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस. सिंप्लीफिकेशन इज ऑल ओवर. Rationalize the numerator. Conjugate method. Very good, very good, perfect, perfect. Akash, correct, very good. Rationalize the numerator. Now recollect rationalization method. चलो अभी फटाफट स्टेप्स को आगे बढ़ाओ, rationalize करो न्यूमरेटर को. So multiply and divide by the conjugate of the numerator. चलो start doing. Okay. I just sub off this number 7.5 का पोस्ट का थर्ड. ओके, तो फटाफट रैशनलाइज करते हैं हम न्यूमरेटर को. तो भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर. ठीक है, अभी एल नहीं लिखता हूँ, आई डोंट हैव स्पेस. तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बाद में लिख लेंगे एल को. इसका कॉन्जुगेट रूट ऑफ 5 माइनस कॉस एच -2 अपॉन एच स्क्वायर into root of 5 minus cos h plus 2 से मल्टीप्लाई किया. रूट ऑफ 5 माइनस cos h प्लस 2 से डिवाइड किया. Now please see it very carefully. I have seen many times, you know, students what they do. ये रूट है ना, वो ध्यान नहीं रखते, किधर तक है ना, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिखते. बहुत बार देखा मैंने. 5 माइनस cos h -2, वो रूट लिखते लिखते ना -2 भी अंदर आ जाता है रूट के. दिस इज टोटली रॉन्ग. इसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. तो प्लीज टेक केयर व्हाट यू आर राइटिंग एंड हाउ यू आर राइटिंग. तो प्लीज डू नॉट राइट डाउन एनीथिंग व्हिच इज नॉट प्रॉपर. नाउ न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू a प्लस बी. चलो सिंप्लीफाई करो न्यूमरेटर को आप. So what will numerator become, students? Limit h is tending towards 0. This will become 5 minus cos h minus 4. A minus b into a plus b is a square minus b square. Directly. Many times we have already done. Upon में h square है into इसका conjugate है 5 minus cos h plus 2. Close the bracket. Now simplify the numerator. 5 minus cos h minus 4 को आप simplify करो. Denominator को same रखो. Do not open up the brackets in the denominator.
नेवर डू दैट, डिनोमिनेटर में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो व्हाट विल न्यूमरेटर बिकम नाउ, 5 minus 4, तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं इसे में चेंज कर देता हूँ, तो दिस बिकम्स 1 minus cos h हो जाएगा ये। नाउ वी सेपरेट दिस आउट, this will become what, limit h is tending towards 0, this is going to become 1 minus cos h by h square into 1 by root of 5 minus cos h plus 2 and close the bracket। 1 minus cos h के नीचे h square लिखा और ये वाला ब्रैकेट अलग कर दिया 1 minus वाला। Now recollect and solve for this, इसको आपको सॉल्व करना है। Now when we have done type 6b, जब हमने type 6b किया तो I think so थर्ड या फोर्थ एग्जांपल था। Now I exactly don't remember the number, but just check 1 minus cos x upon x square वाला प्रॉब्लम किया देखो हमने। Please see it in the notebook. I want everyone to do that. ये सॉल्व करके आप इसका आंसर आप मेरे को बताओ, ये वाला पार्ट। इसमें h का वैल्यू 0 डालना है। यू कैन रेफर दैट प्रॉब्लम, आई थिंक सो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम था। कैन एनीवन चेक एंड टेल मी द नंबर, 6th B का रेफर। Question 6. 6B, ओके 6th क्वेश्चन, ओके 6th B का 6th क्वेश्चन देखो, half, इस वाले पार्ट के। यस हाफ, करेक्ट, वेरी गुड। 1 minus cos h by h square है ना, इसका आंसर आपको हाफ आएगा। आई एम नॉट डूइंग दैट प्रोसीजर, है नोटबुक में आप देख लेना। ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें h का वैल्यू 0 डालो, तो cos 0 is 1, 5 minus 1 is 4, root 4 is 2, 2 plus 2 is 4, ये 1 by 4, ये 1 by 2 into 1 by 4, so the value of the limit is 1 by 8, problem is over। ओके देख लो आप आंसर। आई रिपीट, एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम में 4 मार्क का प्रॉब्लम है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली हाफ नहीं लिख सकते, यू हैव टू डू दैट प्रोसीजर। नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी डन इट मेनी टाइम्स, आई वांट यू टू डू इट, सी एंड डू इट, सो आई हैव लेफ्ट दैट फॉर यू। इसके बीच के स्टेप्स आप लिखोगे, आप करोगे, तो ये 1 by 2 आएगा और इसका 1 by 4, आंसर इज 1 by 8, प्रॉब्लम इज ओवर। दिस इज अ 4 मार्क प्रॉब्लम। Please note down. If any difficulty, you can ask. तो देखो, अगर अपने को टाइप 6A और 6B बराबर से आता है तो ही 6th C समझ में आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद, देखो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब प्रॉब्लम कन्वर्ट होता है तो इसके बाद या तो अपने को टाइप 6A से करना पड़ता है या तो टाइप 6B से करना पड़ता है। रैशनलाइज, फंडामेंटल, आइडेंटिटी, यू नो, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, we need to move according to 6A or 6B only. We don't have a choice in that, you know.